स्पीकर हैं मोहतरम वालिद नहीं और उनके साथ हमारे भाई तारिक निशान हमारे दरमियान में है। और बच्चे को तशरीफ लाएंगे अंदर, बच्चे जो है फूलों से उनका इस्तकबाल करेंगे। हम अपने मजबूत तारीफ से हमारे दरमियान मोहतरम वालिद नहीं साहब और हमारे भाई तारिक निशान हमारे मौला है, अपने तारीफ से कहेंगे। एक गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम इबादत करेंगे। Yeah.
साथ गुजरता जा रहा है और आज के हम मजमून की तरफ बढ़ें। आज का जो हमारा मरकज़ी और मुकाशवा किताब उसका 19वां उसकी छठी आज से लेकर 10 में बड़े से एक जगह साइड कर देगा ना आपका बार बार ना करें ताकि जब कलाम की बारी आती है तो बीच में ऊपर नीचे साउंड करना फिर ये सही बात नहीं है। मैंने सही था अभी आप इसको टच करेगा स्ट्रेट जगह सेट करें। नया काम में से मुहाजरे की किताब उसका 19वां बाब और उसकी छठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक की तिलावत आपके सामने करूंगा। कुरान के पाक और मुक़द्दस कुरान में लिखा है, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सब गर्दों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा काल मुतलिक बादशाही करता है। हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बता की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ मोहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मोहीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। और उसने मुझसे कहा, लेख मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदा के बाद हम की बड़े और सुने जाने वाले खुदा की बरकत हो। इसे बहन के नाम खुदा का कलाम आज की मज़मून के मुताबिक उसके बंदा के वसीला से चले। हम वाइट के साथ मिलकर कलाम की तैयारी के लिए अपने दिल को तैयार करते हुए एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदा के बंदा और बर्बादी के असर नाइन के वसीला से आज के मज़मून पर खुदा का कलाम सीखें। दरिया में
کہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کی مدد سے اس کا کلام سنیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن آج کے جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے بارے میں دینا چاہوں گا۔ تو آج کے جو ہمارے پہلے دن کے اسپیکر ہیں، جیسے کہ آپ سامنے پہلا فلیکس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، محترم والد کیسا نعیم صاحب ہیں، اور جب ان سے میں نے پوچھا کہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیں تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اتنا زیادہ آپ اس کو نہ کریں کیونکہ خادم ہوں، خدا کی خدمت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا کلیسیا کے لیے کہ کون ہمارے درمیان میں آج موجود ہے۔ تو محترم والد صاحب نے 2008 میں ہمارا جو کراچی کا سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج ہے وہاں سے ایم ڈے کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پاسبانی خدمت کو سر انجام دینا شروع کیا، اور مختلف کراچی ڈائسس چرچ آف پاکستان میں اپنی خدمت کرتے ہیں، اور خدا نے کثرت سے اپنی پاسبانی خدمت کے لیے کلیسیاؤں میں استعمال کرتا ہے۔ موجودہ جہاں پر وہ اپنی پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اتحاد گاؤں میں وہ اپنے خدمت کر رہے ہیں، اور وہاں پر خدا کے فضل سے خدا نے موقع دیا تو ایک نئے چرچ کی جو انہوں نے بنیاد رکھی اور نیا چرچ بنایا گیا وہاں پر، اور اگلے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ ضرور سے دعا میں رکھیں۔ خدا نے ایک بڑا موقع دیا اور خدا ان کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ تک کا گیرنٹی کے اوپر خرچہ کیا گیا ہے، تو خدا نے برکت دی اور کثرت سے اپنی گواہی جلال کے استعمال کریں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے بڑا کی ضیافت، ہم والد صاحب کے وسیلہ سیکھیں گے۔ آپ کی حضور اور مربوط تعلیم میں میں والد صاحب کو دعوت دوں گا۔ پہلی دفعہ آواز مجھے کام آئی تھی، میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں جو برکت دی ہے اس کو خدا کے نام کو جلا دینے کے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ایک واقعے کے ساتھ میں آگے بات کروں گا۔ ایک چرچ میں عبادت ہو رہی تھی اور خدا کا خادم خدا کے کلام کو شیئر کر رہا تھا۔ پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی خدا کا خادم خدا کے کلام کی انمول باتوں کو شیئر کرتا، لوگ نعرے لگاتے، لوگ تالی بجاتے، لیکن ایک شخص جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جیسے لوگ نعرے لگاتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے۔ پھر دوبارہ موقع آیا، لوگوں نے نعرے لگائے، اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ خدا کا خادم سامنے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ ایسی سچویشن رہی، اور خدا کے خادم سے رہا گیا۔ جیسے ہی بات ختم ہوئی وہ فوراً اس شخص کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ لوگ تو نعرے لگا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ اس شخص نے ایک پیپر پر لکھ کر دیا کہ میں بول نہیں سکتا، کاش میں بول سکتا اور میں بھی اپنے خدا کے لیے نعرے لگا سکتا۔ عزیزو، خدا نے اگر ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو خدا کی شکر گزاری کریں، خدا ان کے نام کو جلاؤ دیں۔ خدا نے اگر ہمیں ہاتھ سلامت دیے ہیں تو اس کے نام کو جلاؤ دیں۔ خدا نے ہمیں ٹانگیں سلامت دی ہیں تو اس کے نام کو جلاؤ دیں، جو ہمیشہ مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے اور اپنے نام کو جلاؤ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب بھی خدا کے نام کی بات آئے
घबराए ना, शर्माए ना, खुदा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और खुदा के नाम को अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल दें। इस जुबान की कदर करें। देने वाली वो ज़ात है, जब उसके नाम से हम जवाब नहीं देंगे तो वो कुछ करेगा, उसके नाम से जलाल नहीं मिलेगा। खुदा के नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिसने अपनी खिदमत के लिए बुलाया और फिर अपनी कुव्वत देकर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद जरा मोहसिन फालिद साहब की इस मोहब्बत का, इनके प्यार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि खूबसूरत कलीसिया के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूँ, पेश कर सकूँ। और उसके बाद मैं पैरिश कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फालिद साहब के साथ मिलकर इस तरह की खूबसूरत महफिल सजाते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जला देते हैं। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक रहता है, बना की ज़ियाफ़त। और अगर मैं कहूँ कि कौन कौन इस ज़ियाफ़त में शामिल होना चाहता है, कौन कौन इस ज़ियाफ़त में शामिल होना चाहता है? सारे लोग इस ज़ियाफ़त में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन शामिल होना आसान काम नहीं है। जब इस कलाम को सीखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि इस ज़ियाफ़त में शामिल हो सकूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फालिद साहब को, उनकी सारी कमेटी को इस खूबसूरत टॉपिक के इंतखाब पर। तो जोरदार तालियां बजाएं फालिद साहब के लिए, अपने आप को तैयार अपने आप को बंद करेंगे और खुदा के सब अपने आप को बंद करें, खुदा की हुजूर को महसूस करें। वो खुदा जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। मैं और आप न अपने इल्म से खुदा के कलाम को पेश कर सकते हैं और ना अपनी लियाकत से खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। खुदा से कहें कि खुदा तुम मेरी रहनुमाई कर, खुदा से कहें कि खुदा तुम मुझे हिम्मत और ताकत दे, खुदा से कहें कि खुदा मेरे ख्यालों को यकीन कर, मेरी सोच को पार कर, ताकि मैं सारे वक्त में तेरी आवाज को पूरे तौर पर सुन सकूं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूं। तू मेरा जोर बन, मेरी ताकत बन, मेरा मुंह बन। और खुदावंद एक जिंदगी पर तेरे पाक लहू की ओर को मांगते हैं। तो जब तेरे कलाम को सीखते हैं, तेरा पाक रूह हम सब के रहने चाहिए। इस वक्त ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। बना की ज़ियाफ़त। मेरे जो दुनिया में बड़ी बड़ी पुरकार ज़ियाफ़तें हुई हैं और होंगी, लेकिन इस तकरीब जैसी ना कोई होगी और ना कोई हो सकेगी। इस तकरीब की खुशी और बरकत की इंतहा नहीं होगी। हम इस तकरीब की खुशी और बरकत को माप नहीं सकेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि ये ज़ियाफ़त बिला तकरीब होगी। इसमें किसी अमीर की बात नहीं होगी, इसमें किसी गरीब की बात नहीं होगी, इसमें किसी पढ़े लिखे की बात नहीं होगी, इसमें किसी अनपढ़ की बात नहीं होगी, इसमें किसी गोरे की बात नहीं होगी, इसमें किसी काले की बात नहीं होगी, इसमें किसी मर्द की बात नहीं होगी, इसमें किसी औरत की बात नहीं होगी। ये तकरीब, ये ज़ियाफ़त हर एक के लिए होगी।
یاد رکھیں کہ اس ضیافت کا ہر ایک کو انتظار ہے. ہم یہ گیت بڑے شوق سے گاتے ہیں, ہوش اڑ جائیں یسوع نے چلو آنا. ہر ایک کو اس ضیافت کا انتظار ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس ضیافت کا انتظار تو سب کو ہے, لیکن ہر کوئی اس ضیافت میں شامل نہیں ہو سکے گا. یہ تقریب, یہ ضیافت, یہ دعوت بڑی منفرد ہوگی, یہ فضائی ضیافت ہوگی, یہ ضیافت بادلوں پر ہوگی, اور یہ ضیافت, یہ دعوت جو ہے وہ خاص رشتے کو ظاہر کرتی ہے, خاص رشتے کا احساس دلاتی ہے. اور ہم سب بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ قربت سے مضبوط ہوتے ہیں. رشتے دوری اختیار کرنے سے مضبوط نہیں ہوتے, اور جس رشتے میں احساس اور احترام ہوتا ہے وہاں پر خوشی ہوتی ہے, وہاں پر شادمانی ہوتی ہے, وہاں پر اطمینان ہوتا ہے, اور وہاں پر خوشی ہوتی ہے. اور یہ ضیافت ہمارے خداوند کی طرف سے ہوگی. بطور مسیح دولہا آئے گا, اور کلیسیا بطور دلہن جو ہے اس ضیافت میں شامل ہوگی. اس ضیافت کی خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ اس میں انسانی نظام نہیں ہوگا. اس ضیافت کی خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ اس میں انسانی انتظام بھی نہیں ہوگا. اس ضیافت کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ اس میں دنیاوی خوراک بھی نہیں ہوگی. اور اس ضیافت کی خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ اس میں کوئی انسان مداخلت نہیں کر سکے گا. نہ کوئی حکمران, نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی دولت مند, نہ کوئی طاقتور, نہ کوئی عالم, نہ کوئی فاضل, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی حکیم, کوئی بھی انسان اس ضیافت میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ دعوت بڑی منفرد ہے, یہ ضیافت بڑی منفرد ہے, اور اس ضیافت میں شامل ہونے کے لیے ہمیں بڑی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کی, لوگ مکاشفہ کی کتاب کو مختلف طرح سے پیش کرتے ہیں. میں اور آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہے, اور ہم ان باتوں کو سنتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو الٹا پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کو وہاں سے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو ورد کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. افسوس ایسے کم بدل لوگوں پر جو خدا کے کلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ کلام نہ میرا ہے, نہ کسی اور قوم کا ہے, نہ کسی انسان کا ہے, یہ کلام خدا کا ہے. اس کلام میں امید ہے, اس کلام میں برکت ہے, اس کلام میں تازگی ہے, اس کلام میں تسلی ہے, اس کلام میں اطمینان ہے, اور اس کلام میں خوشی ہے. لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو بتا کر ڈراتے ہیں اور ان کی زندگی میں ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں. ایسے کم عقل لوگوں پر افسوس کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کا کلام زندگی میں ڈر پیدا نہیں کرتا. خدا کا کلام زندگی میں خوف پیدا نہیں کرتا. خدا کا کلام زندگیوں سے ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے. وہ پیدائش کی کتاب ہو, وہ زبور کی کتاب ہو, وہ مکاشفہ کتاب ہو, یہ کلام لا تبدیل ہے, یہ مؤثر ہے, یہ معتبر ہے, جو زندگیوں کو کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے اس کو بتائیں کہ یہ کلام خدا کا ہے, کسی انسان کا نہیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے. جو کوئی اس میں بڑھائے یا جو کوئی اس میں گھٹائے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ بڑے کی ضیافت میں شامل نہیں ہو سکتا. مکاشفہ کی کتاب بڑے بڑے بھیدوں کو اشکار کرتی ہے. پیدائش کی کتاب میں شروعات ہے
اور مقاصد کی کتاب میں انجام ہے، تکمیل ہے، اور انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مقاصد کی کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے the book of conclusion، انجام کی کتاب، کہ پوری بائبل کا نچوڑ ہے۔ مقاصد کتاب خوبصورت کتاب ہے، مقاصد کتاب امتحان کی کتاب ہے، اور مقاصد کتاب نتیجہ کی کتاب ہے۔ مقاصد کتاب کے 22 ابواب ہیں اور 394 آیات ہیں۔ 3 حصے ہیں اس کتاب کے۔ پہلا جو حصہ ہے پہلے 5 ابواب، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ 6 باب سے 20ویں آیت تک، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ 21واں اور 22واں باب ہے۔ اور مقاصد کتاب کا جو پورا ایک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ نہ صرف یسوع بادشاہ ہے بلکہ یسوع فاتح ہے، وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی ضیافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اس کی ضیافت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ برا کی ضیافت، جب بات کرتے ہیں کہ برا کون ہے، یہ برا اصل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، یہ دنیاوی برا نہیں ہے، یہ آسمانی برا ہے۔ ایسا برا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، ہم اس برے کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتے۔ نایاب برا، انمول برا، جسے خدا نے خود مہیا۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا برا ہے تو ایک اسپیسیفک ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تو کلام خدا میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ یہ خدا کا مہیا کردہ برا ہے۔ اور جب یوحنا اپنے شاگردوں سے خدا نے یسوع مسیح کا تعارف کروا رہا ہے، پہلے باب کی 29 آیت میں یوحنا اور اس کے شاگرد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور یوحنا اور اس کے شاگرد خدا نے یسوع مسیح کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یوحنا اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر خدا کے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیتا ہے۔ پرانے احکام میں جو برا ذبح ہوتا تھا وہ لمیٹڈ ہوتا تھا، وہ محدود لوگوں کے لیے قربان ہوتا تھا، لیکن یہ جو برا ہے یہ انلمیٹڈ لوگوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ اور ہم اکثر اس چیز کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ یہ برا میرا اور آپ کا نجات دہندہ کسی ایک شخص کے گناہوں کے لیے قربان نہیں ہوا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ کسی ایک گھرانے کے لیے قربان نہیں ہوا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ کسی ایک کلیسیا کے لیے قربان نہیں ہوا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ کسی ایک قوم کے لیے قربان نہیں ہوا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ کسی ایک ملک کے لیے قربان نہیں ہوا، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے قربان ہوا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پرانے احکام میں برا کی قربانی سے گناہ معاف ہوتے تھے، لیکن نئے احکام میں خدا نے یسوع مسیح کی قربانی کی بدولت نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ میں اور آپ راست باز بھی ٹھہرائے گئے۔ پترس کے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں اس میں خدا ان کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ بے عیب اور بے داغ مرے کے خون سے، اس نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں خرید لیا، اس نے ہمیں اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں چن لیا، ہمیں برگزیدہ کیا، ہمیں پہچان دی، ہمیں نام دیا، اپنی جان کی قیمت چکا کر۔
ایک کام تو ہو گیا، اب دوسرا کام ہے، وہ ہے پردے کی ضیافت۔ اور یہ کلیئر ہے کہ پردے کی ضیافت ہوگی، کب ہوگی، کس جگہ ہوگی، کس دن ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے، لیکن یہ کلیئر ہے، کلام کہتا ہے کہ بڑے کی ضیافت ہوگی ضرور۔ اور لوکاس کی کتاب کے پہلے باب کی جب ہم 7 دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ بادلوں پر آئے گا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ وہ گیا بھی سب کی نظروں کے سامنے اور وہ آئے گا بھی سب کی نظروں کے سامنے۔ یہ میرے پاس کے خداوند کے لیے ایک بڑا استحقاق ہے، یہ ایمانداروں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ گیا بھی سب کی نظروں کے سامنے اور وہ آئے گا بھی سب کی نظروں کے سامنے۔ بڑے کی ضیافت میں کون شامل ہوں گے؟ میں نے پہلے کہا کون شامل ہونا چاہتا ہے، سب نے کہا کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ٹھوس ایک ایشو ہے، یہ بڑی خاص بات ہے کہ بڑے کی ضیافت میں کون شامل ہوں گے، بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کا تقاضا کیا ہے، اور چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون لوگ بڑے کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات غور سے سنیے گا، اور اگر نوٹ کر رہے ہیں تو اس کو نوٹ کیجیے گا۔ پہلے بات کہ بڑے کی ضیافت میں کون شامل ہوں گے، وہ مسیحی ایماندار لوگ۔ صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، صرف ایماندار ہونے کا نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذہب کے لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، لیکن جب لفظ مسیحی لگ جاتا ہے تو لفظ سے پہچان بن جاتی ہے، ہماری شان بن جاتی ہے، میری اور آپ کی آن بن جاتی ہے جب لفظ مسیحی ہمارے ساتھ بن جاتا ہے۔ نام پترس رکھ لیتے ہیں اور کام ہم فرعون جیسے کرتے ہیں۔ کیا ایسا شخص بڑے کی ضیافت میں شامل ہوگا؟ ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، مسیحی ایماندار بننا سب سے ضروری بات ہے۔ اور ایماندار جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اور آج میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم لفظوں کی حد تک ایماندار ہوتے ہیں، ہمارے کام ہمارا کردار اس بات کی تاثیر نہیں کرتا کہ ہم مسیحی ایماندار ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج نہ کلام پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہم کلام سننا پسند کرتے ہیں، اور بات بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کی کرتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور جہاں پر جو لفظ مبارک ہونا ہے، یہ بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کا کریم کارڈ ہے۔ آج کلام ہمارے گھروں میں بند پڑا رہتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا خدا کے کلام کو پڑھنے کا، اور نام لگاتے ہیں بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ گھنٹوں ہم اپنی موبائل کو ٹائم دیتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ موبائل ہمیں بڑے کی ضیافت میں لے کر نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، لیکن اس کا استعمال بھی طریقے کے ساتھ کریں، وہ کام کریں، وہ چیز اپنائیں جو آپ کو بڑے کی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک گھر میں گیا اور چھوٹا بچہ تقریباً 4 سے 5 سال کا ہے، وہ بیٹھا اور بچہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، تو ماں نے فوراً موبائل کو لگا کر لے لیا، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔
میں نے پوچھا بات یہ کیا ہے؟ کہتی فاضل صاحب جب تک یہ موبائل نہ دیکھے کہ کھانا نہیں کھاتا۔ آج کی ماں یہ ریکوائرمنٹ تو پورا کر رہی ہے، لیکن خدا کے کلام کا بیچ کتنا بچے کی زندگی بنا رہی ہے۔ جب بیچ ایسا ہوگا تو وہ زندگی پھلدار کیسے ہوگا؟ وہ بچہ اور ماں، وہ گھرانہ کیا بڑے کی ضیافت میں شامل ہو سکے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ چیزیں بنائیں جو میرے اور آپ کی ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ مسیحی ایماندار لوگ بڑے کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ نہ ماں باپ خود اس چیز کو بناتے ہیں، اور اگر ماں باپ خود اس چیز کو نہیں بنائے گا تو وہ بچے کو کیا اچھا دے سکتا ہے؟ ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود ہی کلام نہیں پڑھیں گے تو بچے کو کیسے کہہ سکیں گے کہ کلام پڑھیں؟ تو دعا ہمیں خاصیت ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے اپنے پیر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج کا جو بڑا ایشو چل رہا ہے 800 بیٹی کا، اگر بچوں کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسیحی ایماندار بنے، مسیحی ایماندار لوگ بنے، مسیحی ایماندار گھرانے بنے، تاکہ آپ اپنے خاندان سمیت بڑے کی ضیافت میں شامل ہو سکیں۔ اور دوسری بات، کون لوگ بڑے کی ضیافت میں شامل ہوں گے؟ دوسری جو قسم کے لوگ ہیں وہ ہے رفاقت اور شراکت رکھنے والے لوگ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے؟ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اور بات ہم کرتے ہیں بڑے کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے سب سے پہلے خدا کے ساتھ، اور دوسری رفاقت اور شراکت رکھنی ہے ایمانداروں کے ساتھ۔ کلام خدا میں بڑی خوبصورت بات ہے، جیسا میں پاک ہوں ویسے تم بھی پاک ہو۔ یہ کلام کی آواز ہے، یہ خدا کی آواز ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے تو پاکیزگی کے عمل سے اپنے آپ کو گزارے۔ خدا کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھے۔ خدا نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اشارہ والی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا خدا کے بدن اور قدم میں شامل ہو۔ ایک بندہ، ایک ہستی، ایک بادشاہ جس نے اپنا بدن، اپنا خون آپ کے لیے قربان کیا، آپ اس کو لینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ جو زمین پر اس بڑے کی ضیافت میں شامل نہیں ہوتا وہ آسمانی ضیافت والی اس بڑے کی ضیافت میں شامل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ جو زمینی کلیسیا کے ساتھ مل کر کی بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اس جلالی کلیسیا کے ساتھ مل کر بڑے کی ضیافت میں بھی شامل نہیں۔ افسوس ہوتا ہے آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا مسئلہ بنا کر کلیسیا کا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ چرچ آنا پسند نہیں کرتے، خدا کے بدن اور خون میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور میں کیسے میاں بیوی کو جانتا ہوں، اگر شور چرچ آ جانا ہے تو بیوی اس کی چرچ کسی اور جاتی ہے۔ رفاقت و شراکت نہیں ہے۔ ایک ہی خاندان میں دو بھائی ہیں، کہتا جی پہلے اگر میرا بھائی شہر بنے گا تو میں اس کے بعد شہر بنی نہیں ہوگا۔ یہ ہے میری اور آپ کی رفاقت و شراکت کا معیار۔ اور بات ہم بڑے کی ضیافت میں شامل ہوئی ہے۔ آج فقدان ہے گھروں میں، خاندانوں میں، کلیسیوں میں رفاقت و شراکت کا۔ آج کون سا ایسا خاندان ہے جو بچوں کے ساتھ مل کر شراکت کرتا ہے
और खुदा के नाम को अपनी जिंदगी से इज्जत और जला देता है। कलाम खुदा में लिखा है कि शराफत रखने से बाज ना, हमी शराफत रखो, खुदा के साथ शराफत रखो। जो जमीन पर रफाकत और शराकत रखना पसंद नहीं करता वो उस ज़ियाफत में शामिल नहीं। अपने आप को क्या करें, क्या मैं इस काबिल हूँ उस ज़ियाफत में शामिल हो सकेगा। और तीसरी बात बड़े की ज़ियाफत में शामिल होने की है, वो है वफादार लोग बड़े की ज़ियाफत में शामिल होंगे। और हमारी वफादारी का मेयाद ये है कि बाज़ बार हम अपने आप को मसीह बताने से छुपाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी जगह बताना पसंद नहीं करते कि मैं मसीही हूँ। और मैं कैसे नौजवान को जानता हूँ कि जो एक जगह काम करता था, उसने 4 महीने तक बताना पसंद ही नहीं किया मैं मसीही हूँ। उसको उस ऑफिस से चेंज कर दिया गया। और जो नया नौजवान उस जगह पर आया वो भी मसीही था और उसने ये कहा कि मैं मसीही हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अपने काम में वफादार रहूं, ईमानदार रहूं। तो उसकी तनख्वाह भी 2 गुना लगाई गई और उसको इज्जत भी ज्यादा दी गई। ये है वफादारी का मेयाद। और मुकाश की किताब में लिखा है दूसरे बात की 10वीं आयत में कि जहाँ दिन तक वफादार है तो मैं तेरी जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज है क्या? जिस जिंदगी का ताज ही दरअसल बड़े की ज़ियाफत में शामिल होना है। और मुकाश की किताब में 7वें बाब का जब हम मुताला करें 9वीं आयत से 17वीं आयत तक, तो वहां पर मुकद्दस लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, जिन्होंने खुदा के नाम से तकलीफों को बर्दाश्त किया और उन्हें रुतबा दिया मुकद्दस लोग होने का। तो ऐसे लोग फिर बड़ा की ज़ियाफत में शामिल होंगे। आज मेरी और आपकी वफादारी का मेयाद क्या है? मुसीबतें उठाना, तकलीफें उठाना तो लाख की बात है। हम खुदा के साथ कितने वफादार हैं? वफादारी का तकाज़ा हम अपनी दुआया ज़िंदगी से लगा सकते हैं कि मैं जो ईमानदार होने का दावा करता हूँ, मैं खुदा के साथ वफादार होने का दावा करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में दुआया वक्त कितना है? 24 घंटों में मैं कितना वक्त अपने खुदा के साथ वफादार रहता हूँ, ज्ञानकारी के साथ अपने खुदा को वक्त देता हूँ। और मेरी और आपकी वफादारी का बयान ये है, खुदा की कुरान लिखा है कि तू तोला गया पर तू कम निकला। कहना आसान है कि मैं बड़ा की ज़ियाफत में जाऊंगा, जाना कैसे है, कैसे जाऊंगा, मेयाद क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और हमारी वफादारी का मेयाद ये भी है कि मेरा दुनियावी चीजों को देखकर खुदा से बेवफाई कर देते हैं। हमारी अट्रैक्शन दुनियावी चीजें होती हैं। और मैं जरूर नौजवान बेटे और बेटे के लिए बात कहता हूँ कि अफसोस होता है कि जब हमारे बेटे और बेटियां दुनियावी चीजों को देखकर खुदा के साथ और अपनी खाने के साथ बेवफाई कर देती हैं, खानदान के लिए भी नदामत का बायस करती हैं और अपनी कलीसिया के लिए भी नदामत का बायस करती हैं। खुदारा नौजवान बेटे बेटी को ये कहता हूँ कि खुदा के साथ वफादार रहें। जो मजा, जो बरकत, जो ताजगी खुदा के साथ वफादार रहने में है वो कहीं और जगह नहीं। वफादार रहेंगे तो बड़े की ज़ियाफत में शामिल। ये दुनियावी चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, मेरे और आपके काम नहीं आएंगी। हमें खुदा के साथ वफादार रहना है, अपने माँ बाप के वफादार रहना है, अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहना है, ताकि हम बड़ा की ज़ियाफत में खुशी के साथ शामिल। और चौथी बात
बड़ा की ज़ियाफ़त में कौन लोग शामिल होंगे? वो रूहानी लोग शामिल होंगे। ऐसे लोग जो एहसास करने वाले हैं, ऐसे लोग जो सुलह की बात करते हैं, ऐसे लोग जो सत्य को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, ऐसे लोग जो रियाकारी से बात होते हैं, ऐसे लोग जिनके दिल और जिनकी जुबान में एक ही बात होती है। रूहानी लोग, रूहानी होना आसान है, लेकिन रूहानी बनना बड़ा फर्क है। आज बात हम रूहानी बनते हैं, लेकिन रूहानी होते नहीं। ये मेरी और आपकी कमजोरी है। याद रखें कि मैं और आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। मैं और आप खुदा के कादमों को धोखा दे सकते हैं। मैं और आप अजीजों को धोखा दे सकते हैं। मैं और आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। कलाम खुदा में कहते हैं हमारा खुदा दिलों और दिलों को जानता है। उसकी आंखें उसके लोगों पर लगी रहती हैं। और रूहानी बंदा वो होता है जिसकी जिंदगी अपने लिए भी बरकत का बायस बनती है और दूसरों के लिए भी बरकत का। रूहानी वो होता है जो दूसरों की कमियों पर, दूसरों की कमजोरियों पर पर्दा डालता है। आज मैं और आप बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका मेरा क्या है? रूहानी बंदा वो होता है जो गुनाह को पसंद नहीं करता। रूहानी बंदा वो होता है जो हसद नहीं करता। रूहानी बंदा वो होता है जो लालच नहीं करता। रूहानी बंदा वो होता है जो झगड़े का सबब नहीं बनता। रूहानी बंदा वो होता है जो तफरके का बायस नहीं बनता। ऐसे लोग बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। और जो लोग रूहानी बनते हैं, होते नहीं, वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल नहीं होंगे। हम किस किस्म के लोग हैं? मैं किस किस्म का बंदा हूँ? मैं किस किस्म की बंदी हूँ? आज बात हमारी छोटी सी बात और हमारे मुंह से बोला गया एक लफ्ज जिंदगियों को, खानदानों को तबाह कर देता है। मेरी छोटी सी बात, मेरा मामूली सा लफ्ज, मेरा छोटा सा काम जिंदगियों को, खानदानों को तबाह कर देता है। तो क्या ऐसा शख्स बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल होगा? याद रखें कि दूसरों की जिंदगी में तबाही मचाने वाले, दूसरों के खानदानों को तबाह करने वाले कभी बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल नहीं हो सकते। रूहानी बने ना, रूहानी हो जाएंगे। आपकी जिंदगी आपके लिए बरकत का बायस बने। आपकी जिंदगी आपके खानदान के लिए बरकत का बायस बने। आपकी जिंदगी आपकी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने। फिर आपको बताना ना पड़े कि मैं रूहानी हूँ, बल्कि लोग आपके कामों को देखकर खुदा के नाम को इज्जत और चढ़ावा दें। और जो ऐसा शख्स होगा, मेरा ईमान है कि दुनिया की कोई ताकत उसे बड़े की ज़ियाफ़त में जाने से रोक नहीं सकती। हम क्या हैं? हम क्या हैं? पांचवी बात, कौन लोग बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे? वो है खलील और फरोतन लोग बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। कलाम खुदा में खूबसूरत बात है कि जो तुम में छोटा बनेगा वो खुदा की निगाह में बड़ा किया जाएगा। आज कोई भी छोटा बंदा पसंद नहीं करता। हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी मर्जी से अपनी सांस भी नहीं ले सकते। हम तो अपनी मर्जी से आने वाली सुबह भी नहीं ले सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। खुदाम कलाम में खूबसूरत बात है। खुदाम ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। और बात
बड़ी आसानी से कह देते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा। याद रखें कि जिनकी जिंदगी में, जिनकी जुबान में मैं का लफ्ज़ होता है, वो भरे की ज़ियादत में शामिल नहीं हो सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप कुछ भी नहीं है। तो खाक है और फिर खाक में क्या प्यार है मेरा और आपका। और आसानी से कह देते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं का लफ्ज़ अपनी जिंदगी से निकाल दे अगर आप भरे की ज़ियादत में शामिल हो जाते। और जो लोग हलीम और फरोख्त होते हैं, उनकी जिंदगी में अना और ईगो नहीं होती। हलीम और फरोख्त वो लोग होते हैं जो माफ करना भी पसंद करते हैं और माफी मांगना भी पसंद करते हैं। हलीम और फरोख्त वो लोग होते हैं जो बर्दाश्त भी करना पसंद करते हैं। हलीम और फरोख्त वो लोग होते हैं जो अपने गुस्से को जिंदगी में आने की। आज मेरी और आपकी हलीमी और फरोख्ती का मेयार ये है कि कोई एक बात हमें करता है, हम उसको 10 सुनाते हैं और बात हम बड़े की ज़ियादत में शामिल नहीं करते हैं। पहले हलीमी और फरोख्ती अपनी जिंदगी में लेकर आओ, तब जाकर आप बड़े की ज़ियादत में शामिल हो सकते हैं। हम एक दूसरे की हलीमी और फरोख्ती का अंदाज़ा उसके अल्फाज, उसके रवैये और उसके किरदार से लगा सकते हैं। हम हलीमी और फरोख्ती का अंदाज़ा एक दूसरे के एहतराम और ताज़ीम से लगा सकते हैं। जो नौजवान बेटा बेटी माँ बाप की इज्जत और एहतराम नहीं करते, वो भले की ताज़ीम नहीं करते। जो बेटा या बेटी दुनियावी माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो भले की ज़ियादत में शामिल भी नहीं है। इस इज्जत एहतराम के मेयार को देखिए। खुदा ने कहा है कि ये उम्मत होठों से तो ताज़ीम करती है पर इनका दिल से ताज़ीम करना शुरू करें। दिल से फरोख्ती को, हलीमी को अपनी जिंदगी में लेकर आए। और ये मेरा ईमान है, आपका ईमान है कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी शख्स आपको भरे की ज़ियादत में शामिल होने से रोक नहीं। अजीजों, भरे की ज़ियादत सबके लिए, मगर सवाल ये है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि इस ज़ियादत में शामिल हो पाऊंगा? क्या मेरा मेयार ऐसा है? क्या मेरी जिंदगी ऐसी है? क्या मेरा किरदार ऐसा है कि मैं भरे की ज़ियादत में शामिल हो सकूंगा? ये होनी है, कब होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने आप को तैयार करें। खुदा हमें वक्त देता है ताकि मैं और आप अपने काम छाट कर सकें और उस दिन के लिए, उस ज़ियादत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। 5 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मसीही ईमानदार लोग बने। दूसरी बात मैंने रखी कि रफ़ाक़त और शराफ़त रखें। तीसरी बात मैंने रखी कि वफ़ादार लोग बन जाए। और चौथी बात मैंने आपके सामने रखी कि रूहानी लोग बने। और 5वीं बात मैंने आपके सामने रखी कि हलीमी और फरोख्ती को अपनी जिंदगी से ज़ाया करें। दुनिया की कोई जाकर अगर ये 5 बातें होंगी, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई शख्स आपको भरे की ज़ियादत में शामिल होने से रोक नहीं सकता। खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने सरों को दुआ में रखें, अपने आप को बंद करें। और कलाम की बरकत के लिए दुआ करें। सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को बंद करें। इस ईमान के साथ खुदा हम सब अपने सरों को बंद कर साइड पे कर लेना।
दुआ करें मैं अपना खुदा की बात खुदा में झुकाएंगे, खुदा से दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा जलाले आसमानी बाप का शुक्र है, तेरी तारीफ तेरे तमजीद करते हैं। खुदा आज की इस कलाम के लिए जिन्होंने अपने बता के वसीला से खुदा ने कलीसिया में और हम सबों के लिए खुदा ने दिया। तेरे बंदा ने जो खुदा बड़ी जानकारी और ईमानदारी से कलाम का बीज बोया है, खुदा ये बीज रायगा ना जाए बल्कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना भले फल लेकर आए और खुदा हम अपने आप को तैयार कर सके, ईमानदार लोग बने, खुदा रफाकत और शराफत रख गए, हलीमी और फरोगनी और खुदा तुझे रूहानी होकर खुदा तेरे ज़ियाफत में आ सके और खुदा तेरे साथ अबदी ज़िंदगी और खुशी में खुदा शरीक हो सके। खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दे और ज़रा कसरत से अपनी गवाही और जलाल ने खुदा से इस्तेमाल कर सुनने वाले कान के लिए, कबूल करने वाले दिलों के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। मसीह श्री जलाली कादिर और शाफी नाम का वास्ता लेके मांगते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं फारिस साहब के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तफसील और वजाहत के साथ बरकत की ज़ियाफत और उसमें शरीक कौन हो सकता है और बड़ा प्रैक्टिकल जो मैसेज उन्होंने हम तक पहुँचाया कि हम प्रैक्टिस में रहें, रफाकत और शराफत रखें, हलीमी और फरोगनी अपने अंदर लेकर आएँ और रूहानी चीज़ों में जब हम मुश्ताक हैं तो ज़मीन पर भी रूहानी तौर पर अपना चाल चलन के हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने बंदा कसरत से अपने भाई जलाल के इस्तेमाल करें। पार्ट के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, इसी गीत के दौरान अपने हरिए और नजराने खुदा के चरण मिलाएंगे और जो सब के लिए जो भूखे हैं वो इसी गीत के दौरान कुछ को याद कर लें कमेटी का कि हम उनको जो मशरक़ की हमारे वाइफ है गेस्ट है वो के देकर अपनी मोहब्बत से इजहार करते हैं। वाइफ के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे और उसके बाद जो बीमारों के नाम आए हैं तो खास करेंगे बीमारों के लिए दुआ की जाए तो वो बीमार भी सामने आ जाए तो थोड़ा सा जगह मिल जाए तो थोड़ा सा उनके लिए दुआ करेंगे लेकिन अपने कान से उसे मार
इससे पहले कि हम पाकिस्तान को बुके पेश करें, बीमारों के नाम जो हमारे पास आए हैं, जो स्क्रीन के लिए खासतौर पर खसूसी दुआ की दुकान ICU में है, परवीन बीबी के लिए नसरीन बीबी और फरा रोमियो और क्रिस्टल और परवीन और इशराक और अरूज और नियामत मसीह और सादिया और रानी के लिए खासूसी दरख्वास्तें आई हैं कि इनके दुआ की जाए।
جن کے نام یہاں پر نہیں آ پائے آپ جانتے ہیں جو بیمار ہیں تو ضرور آپ بیمار سے بھی دعا کریں، خدا نے شفا دے کر جو نام ہمارے پاس آئے ہیں ہم بادشاہ کو ضرور ان کے لیے دعا کے کہیں گے، اور کمیٹی اگر لوگوں کی ہیں اور ہمارا جو مشہور کی روایت ہے وہ لے آئیں گے ان سامنے، آپ ضرور جب پیش کروں میں بادشاہ کو ضرور تعلیم دیا کریں دور चर्च कमेटी की तरफ से एक और बुके बस अब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी क्रिस्टिया में आए और क्रिस्टिया की मोहब्बत है, बेटी का प्यार है जो फूलों को सिखाता हूँ। इसके साथ ही हमारा चर्च का एक चैनल है गॉस्पेल लाइव चैनल, तो आज की सारी इबादत और कन्वेंशन और आपका मैसेज भी लाइव हमारा जो चैनल है तो आपको आप जरूर हम लिंक आपको सेंड करेंगे, तो आप जरूर उसको देखिएगा। कल की इबादत भी हमारी लाइव जो है वो चलेगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको देख कर जरूर बरकत हासिल करते हैं। जरूर अपने बात में याद रखिए, कल हमारा दूसरा दिन है और आज भी काफ़ी लेट हो गए, कलीसिया से पहले पासा पहुँच गए थे और कलीसिया अभी तक आई नहीं थी, तो ये जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो कल भी जो पादरी साहब हैं, पादरी मोहम्मद साहब, वो भी टाइम के बड़े पाबंद हैं और ये भी बात साहब आपने देखा कि बड़े टाइम के पाबंद हैं, और जो टाइम इनको दिया गया था बल्कि उससे पहले वो हमारे दरमियान में मौजूद थे। तो यकीनन जब बड़ा की ज़ियाफ़त के लिए हम निकलते हैं तो लेट को हमें नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरी ज़ियाफ़त में बड़े टाइम से पहुँच जाते हैं तो ये बड़ा की ज़ियाफ़त है, और आज उन्होंने हमें सिखाया है कि जब रफ़ात और शराकत हम चर्च में नहीं रखते वो ऊपर भी नहीं रख पाएंगे, और जो बच्चे खानदान में माँ बाप के साथ भी नहीं हैं या दूर हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ बड़ा की ज़ियाफ़त में आएँ। और कल का जो पैगम्बर है, जो स्पीकर है, उसे भी अच्छा लगे कि कलीसिया बड़ा की ज़ियाफ़त के इत्तेहाद है, आना चाह रही है, तो ज़रूर हम खुदा के ज़िक्र करता दिन और साथ स्पीकर को भी रखेंगे। आज नाम दिए गए हैं उनके लिए बादशाह से दरख्वास्त करेंगे, और जो खसूसी दुआ कराना चाहते हैं वो इबादत के बाद भी बादशाह से दुआ करा सकते हैं। हम सब अपने सर झुकाएंगे इन बीमारों के लिए और आज की सारी इबादत के लिए, शादी कराने के लिए हम
खुदा शुक्रिया बताओ दूंगा भाषा हालेलुया कर रहा तू तो हालेलुया हाँ तो जरा ठीक है यहाँ पर मौजूद है उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है और जब उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है तो अपने लोगों को अपनी प्रकाश से आसूदा करना चाहता है इस ईमान और उम्मीद के साथ कि हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। उसने अपने आसमान को हम पर खोल दिया है, उसने अपने हाथ को हम पर बढ़ा दिया है। वो मुझे और आपको अपनी प्रकाश से आसूदा करना चाहता है। इसलिए अपने दिलों को उस बरकत को लेने के लिए तैयार करें और अपनी जिंदगी को, अपने दिल को अपने खुदावन की तरफ माइल करें और ये ईमान रखें कि खुदावन की प्रकाश मेरे और आपके लिए है। हमारा खुदावन मुजज़ात का खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है। वो जहाँ होता नहीं तो वहाँ से काटता है और जहाँ पखेरता नहीं तो वहाँ से जमा करता है। उसकी कुदरत के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी मेहरबानी के लिए, उसके फजल के लिए उसका शुक्र करें। वो मुझे और आपको बचा देना चाहता है, वो मेरी और आपकी बीमारियों को दूर करना चाहता है, वो मुझे और आपको कुव्वत देना चाहता है, वो मुझे और आपको अपनी गवाही के लिए अपने जलाल का इस्तेमाल करना चाहता है। बीमारी है, कोई तकलीफ है, परेशानी है, कमजोरी है, मायूसी है, खुदा से कहीं कि खुदावन मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरे हज़ूर पेश करता हूँ। खुदावन पेश करता हूँ, ऐ खुदावन तूने मेरा फिदिया दिया है, तेरे माध्यम से मैंने शिफा पाई है। फिर खुदा मेरी जिंदगी में बहा देगा, मेरी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को खुदावन दूर कर। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तुझे मुजज़ात का खुदा है, तुझे नामुमकिनात का खुदा है, तुझे सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और आसमानी बाप बेशुस दुआ करते हैं जितने बीमार हैं, जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं। खुदा हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, खुदा शुगर का मसला है, या कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, ये सुनाम से दूर कर, बदनों को बहाल कर, क्योंकि तेरे खून में शफा और तेरे नाम में पता पाई जाती है। अब उस पता को इन जिंदगियों के लिए मांग लेते हैं। खुदा बे औलादों के लिए औलाद इसी बरकत की दुआ करते हैं। खुदा तू जो जहाँ बोता नहीं वहां से काटता है, जहाँ बखेरता नहीं वहां से जमा करता है। तेरी कुदरत के लिए, तेरे शौर के लिए, तेरे मसा के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बे औलादों को औलाद जैसी बरकत का फरमा। अगर बदलों में कमियां हैं तो अपने ये सुना से दूर कर। अरे खुदा अगर कोई रुकावट है, अपनी सी रुकावट है या कोई और रुकावट है, अपने ये सुना से दूर कर। तू मुझसात का खुदा है, तुझे आज कल मक्के हवा तक एक साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उन तमाम बेकुलाम जोड़ों के लिए औलाद जैसी बरकत को मांगते हैं और खुदा दुआ करते हैं बेरोजगारों के लिए। तो अपने लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार मुहैया कर, ताकि वो अच्छे रोजगार को पाकर खुदा अपने लिए, अपने घराने की बेहतर कफालत कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा को अपने बेटे बेटी के अच्छे इंतजाम कर, खुदा को हर एक की जरूरियात पूरी करते रहना, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा खास कर दुआ करते हैं घरों में जो नातफाकियां हैं, खुदा घरों में मोहब्बत और प्यार को मांग लेते हैं। खुदा आसमानी बाप दुआ करते हैं नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, खुदा उन्हें हिकमत और दनाई से मामूल कर, ताकि बच्चे तेरे वफादार रहे, माँ बाप के ताबेदार रहे और अपनी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल।
खुदा तुम्हें ईमान की मजबूती का है, मेरा हबी से खुदा बचाना है। खुदा तो अपने नौजवान बेटे बेटियों की आराम को जवानी है, उन्हें अपने कलाम और अपने घर की भूख और प्यास लगा है। खुदा उन्हें मुबारक के दावेदार बना है। खुदा उन्हें मुबारक के फरमाबरदार बना, ताकि मसीह नौजवान मेरे बेटे बेटियों से माँ बाप के लिए अपनी कलीसिया के लिए बरकत का वास्ता खुदा उनको बुरे माहौल से बचा। और खुदा उन खास कर दुआ करता हूँ, खुदा जो बच्चे पढ़ते हैं ऐ आसमानी बाप उन बच्चों को कामयाबी अता करना, उनके सहनों का जिम्मा ले, ताकि बच्चे कामयाब होकर अपने लिए माँ बाप के लिए बरकत का वास्ता। खुदा दुआ करते हैं तमाम नौजवानों के लिए जो नशा करते हैं, ऐ खुदावन उन जिंदगी में चेंज ला, उन जिंदगी में तब्दीली ला, ताकि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे। खुदावन उन्हें सही राह पर चलने की तौफीक दे। जिंदा आसमान वापस कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं, कलीसिया के खानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं, एक एक जिंदगी पर, एक एक खानदान पर, एक एक बुजुर्ग पर, एक एक जवान पर, एक एक बच्चे पर, एक एक भाई पर, बहन पर तेरी बरकत को मांगते हैं। ये कलीसिया तुझ में बढ़ती चले जाए, तेरा जिंदा नाम इस कलीसिया में इज्जत और जलाल पाए। खुदा तेरे खातरबंदा के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, जो बड़े बोझ के साथ, बड़ी तनदही के साथ, बड़ी दिल जमाई के साथ इस कलीसिया में तेरी खिदमत करता है। ऐ खुदा तो अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, उसकी खिदमत को और ज्यादा मौसर कर, ताकि खुदा तेरा बेटा अपने लिए कलीसिया की बरकत करना। खुदा तमाम खिदमत गुजारों पर, तेरे बंदों पर, बंदियों पर, बेटियों पर खुदा एक एक पर तेरी बरकत चाहते हैं, जो इस चर्च में रहकर किसी भी स्टेज पर तेरी खिदमत करते हैं, एक एक को बड़ी बरकत उनकी खिदमत को कबूल कर, अपने जलाल अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर। ऐ खुदा ये कलीसिया तेरी है, ये लोग तेरे हैं, इन्हें हर तरह की मुश्किलात परेशानियों से महफूज रखना। और खुदा जिनके नाम बड़े ईमान के साथ तेरे मसबा पर रखते हैं, खुदा एक एक को छू, एक एक को मसा कर, अपनी गवाही और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, ताकि तेरा नाम इस पर खुदा अपने मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा मुल्क के सारे निजाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, मुल्क में बसने वालों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, अपनी डायसिस पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा नाम हर जगह इज्जत और जलाल आपकी सारी बात के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा इस हदीये को कबूल कर, जो बड़े ईमान के साथ तेरे दिए हुए में से खुदा तेरी ईमान और तेरे से पेश किया है, इसे भूल कर बख्श दे के तेरे के गले हमेशा तेरे आसमान में हम सबको बड़े बड़े धन्यवाद ये दुआ के खुदा यीशु मसीह की वसीला से मांगते हैं। हम सब मिलकर कहें, जो आसमान का तेरा नाम का होती है जमीन पर हमारे अब हमारे खुदा मसीह का वज़न खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह के विकास को शराकत अब से विषय तक मंजिलों पर, हमारे खानदानों पर, कलीसिया पर और कलीसिया पर अब से विषय तक करें। एक बार फिर मैं आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपके सारे प्यार के लिए शुक्र अदा करता हूँ और स्पेशली सबका शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया ताकि मैं पेश कर सकूँ। फादर साहब की सारी खिदमत के लिए आप रोज़ा पाने बजाय